હેલો એવરીવન, જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે રવિરાજ. આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે જીટીયુ પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન પેપર સોલ્યુશન ફોર BEE બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ અને એમાં શરૂઆત થઈ છે સમર 22 પેપરથી. ક્વેશ્ચન નંબર 1 સોલ્યુશન ઓલરેડી અપલોડેડ છે. આ વિડીયોમાં આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 સોલ્યુશન ડિસ્કસ કરવાના છે. ઓલરાઈટ, ચાલો ડિસ્કશન શરૂ કરતા પહેલા જલ્દીથી મારો પરિચય આપી દઉં. માય નેમ ઇઝ રવિરાજ. તમારા જેવા જ બેકગ્રાઉન્ડથી બિલોંગ કરું છું. ગુજરાતી મીડિયમમાં મારું 12th સાયન્સ, 12th બોર્ડ ગુજરાતી મીડિયમમાં એક્ઝામ આપી, પછી AIEEE જેઈ એક્ઝામ બેઝિસથી મને એડમિશન મળ્યું નિર્મા યુનિવર્સિટી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ બીટેક. જોબ કરીને તરત જ ઈચ્છા થઈ કે ના હજુ માસ્ટર્સ કરવું છે. જોબ છોડી ગેટ એક્ઝામ પ્રિપેરેશન, એના પછી માસ્ટર્સ ફ્રોમ NIT સુરત, સ્પેશિયલાઇઝેશન પાવર સિસ્ટમ્સ, અને ફોલોડ બાય PhD ફ્રોમ IIT બોમ્બે. PhD ફ્રોમ IIT બોમ્બે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટથી PhD. ઓલરાઈટ, જ્યાં સુધી ટીચિંગની વાત કરું કે કોચિંગની વાત કરું, ઇટ્સ માય હોબી. અને છેલ્લા 10 વર્ષોથી હું ગેટ કોચિંગ માટે એઝ અ ફ્રીલાન્સર કન્ટિન્યુઅસલી એક્ટિવ છું. અલગ અલગ સબ્જેક્ટ ભણાવ્યા છે, અલગ અલગ સિટીમાં ભણાવ્યા છે, અલગ અલગ છોકરાઓને સિટીમાં, અલગ અલગ ભાષામાં, મેજરલી ઇંગ્લિશ ઓર હિન્દી, પરંતુ ગુજરાતીમાં પણ આપણે ઘણી એવી ફાવટ છે. ઓલરાઈટ, ચાલો તો ભાઈ શરૂઆત કરીએ. વેરાયટી ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એસોસિએશન વિથ વેરાયટી ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, મેજરલી ગેટ. જાગૃત આવાજ સાથે જોડાવાનું એક જ કારણ છે કે જાગૃત આવાજ જે કામ કરી રહી છે એ સર્વિસ બહુ જ અને બહુ જ જરૂરી છે એવું મને લાગે છે. અને બીજું મહત્વનું કારણ, જાગૃત આવાસમાં જે ડિસિઝન્સ લેવામાં આવે છે એ સ્ટુડન્ટ સેન્ટ્રિક હોય છે. સ્ટુડન્ટ્સને મધ્યનજર રાખીને બધા ડિસિઝન બનાવવામાં આવે છે. એટલા માટે ભાઈ મને એસોસિએશનથી બહુ મજા આવે છે. જો તમને પણ આવશે, જલ્દીથી જોઈન થાઓ. એક રીઝન શોધો જોઈન થવાનું. ચાલો, વેરાયટી ઓફ કોર્સિસ અવેલેબલ છે જાગૃત આવાસ પાસે. એના ડિસ્ક્રિપ્શન તમને, એના લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ઓલરાઈટ, ચાલો શરૂઆત કરીએ આપણા સેશનની શરૂઆત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 2. બેટા થોડો પોઝ લો. આ મોમેન્ટ ઉપર થોડો પોઝ લો. 2 ABC એન્ડ C ઓર, આ ચારે ક્વેશ્ચન ખાલી એક વખત વાંચો. વિડીયો પોઝ કરો, ક્વેશ્ચન વાંચો, ક્વેશ્ચનની ફીલ લો. પહેલા જુઓ કે કેટલી સમજ પડે છે, ખબર પડે છે કયા ચેપ્ટરમાંથી છે. જો હા તો શું મગજમાં આવે છે. પહેલા આ પ્રોસેસ કરો, પછી આપણે એનું સોલ્યુશન જોઈશું. એટલે તમે ટ્રાન્ઝિશન જોઈ શકશો. You will be able to see the transition that when you have taken a look at this question at beginning, what has come up in your mind, and now after when we will discuss the solution, what is the gain of this lecture. આ લેક્ચરમાંથી તમને શું શીખવા મળ્યું એ ખબર પડશે. વિડિયો પોઝ કરો, ક્વેશ્ચન વાંચો ફટાફટ. ઓલરાઈટ, ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 2A થી શરૂઆત કરીશું. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 2A. ક્વેશ્ચન નંબર 2A શું કહેવા માંગે છે? ક્વેશ્ચન નંબર 2A says that state the superposition theorem with suitable example. સુપરપોઝિશન થિયરમ, બેટા ડીસી નેટवर्कના થિયરમનો ક્વેશ્ચન છે. सुपरपोजिशन थियरम. अब सुपरपोजिशन थियरम क्या है? देखो स्टेटमेंट लिखा है बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश भाषा, लेकिन बेटा डेफिनेशन तो डेफिनेशन है ना. डेफिनेशन સાથે ચેડા નહીં થાય. તો આ ડેફિનેશનને કેવી રીતે આસાન બનાવવાની, કેવી રીતે સિમ્પલ બનાવવાની સમજ, એ મારું કામ છે તમારા માટે. અને બાકી આ તો બુકમાં પણ છે, તમે બુકમાં વાંચી લેશો. મારું શું કામ ત્યાં? મારું કામ એટલું કે આને તમને સમજાવવાનું અને કેવી રીતે લખવાનું એ તમારા માટે સિમ્પલ બનાવવાનું. એ કામ મારું. ચલો આવી જાઓ, હું મારું કામ કરું. પહેલા વાંચીએ સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે. સ્ટેટમેન્ટ પણ વાંચતી વખતે શું કરવાનું, એને બ્રેક કરી દો. સ્ટેટમેન્ટ્સ બ્રેક કરી દો. તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી તમે એને બ્રેક કરી શકો. જો તમને સુપરપોઝિશન ખબર હશે તો તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમે એને બ્રેક કરી શકશો. કેવી રીતે? સો જુઓ, હું તમને અહીંયા મેઇન તો પહેલા હાઇલાઇટ કરી દઈશ કે કયા वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्वेश्चन आंसर में आने ही चाहिए ये वर्ड्स, एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड्स. तो देखो एक तो ये मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, એમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આવવું બહુ જ જરૂરી છે આ ડેફિનેશનમાં. ઓકે, એવું નેટવર્ક જેમાં એક કરતા વધારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોર્સ હોય. ઓકે, તો
કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ અક્રોસ રિસ્પોન્સ હોય તો વોલ્ટેજ ક્યાં તો કરંટ તમે શોધી શકો. રિઝલ્ટન્ટ રિસ્પોન્સ આવવું જોઈએ ટર્મ. રિઝલ્ટન્ટ રિસ્પોન્સ in any element is algebraic sum. Algebraic sum બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. algebraic sum ડાયરેક્શન સાથે algebraic sum પ્લસ માઇનસ આવે એટલા માટે. algebraic sum of individual response produced by each independent source. Individual response produced by each independent source acting alone with other independent source replaced by their internal resistance. ચમકા નહીં સમજાયું વાંધો નહીં સમજાવું છું. ઉભા રહો, ધ્યાન રાખો, થોડું પેશન્સ. ચાલો આવી જાઓ હવે વર્ડ બાય વર્ડ. તો દેખો જુઓ, આ સમજાવવા માટે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણા બોલિવૂડના પિક્ચર્સ, મૂવીઝ. બરાબર, ચાલો એના એક્ઝામ્પલથી સમજીશું. તો માની લો એ હીરો છે, હે, એ હિરોઈનને બચાવવા ગયો છે ક્યાં આગળ? विलन जहाँ रहे छे एना घर पास, है ना, घर में. હવે अब जहां पर विलन है वहां पर तो बहुत सारे उसके शागिर्द होंगे, उसके साथ वो जूनियर आर्टिस्ट जो रहते हैं डिशुम डिशुम करने के लिए. तो जब डिशुम डिशुम स्टार्ट हुआ क्या होगा? एक एक बंदा आएगा बारी बारी, एक साथ नहीं आना है. एक साथ आएगा तो बेचारा विलन हीरो पीट जाएगा. हीरो नहीं पीटना चाहिए अपना. तो क्या होता है, सोचो क्या होता है? होता ये है कि जब डिशुम डिशुम चल रहा है तो एक के बाद एक बंदा आएगा. हाँ, अलग अलग डायरेक्शन से आ सकता है, एक राइट से आ सकता है, एक लेफ्ट से आ सकता है, एक पीछे से आएगा. और अपना हीरो क्या एकदम मार्शल आर्ट मूव करके इसको मारेगा इस तरफ, इसको मारेगा उस तरफ. पीछे वाले को भी पता चल जाएगा, पीछे आंखें उसकी, पीछे पता चल जाएगा कि पीछे से भी आ रहा है, उसको भी मारेगा. समझ रहे हो? एक के बाद एक आना है, एक के बाद एक. बस सुपरपोजिशन वही तो है. जब एक नेटवर्क में एक से ज्यादा वोल्टेज या करंट सोर्स है, वोल्टेज या करंट सोर्स है, उसको हमने क्या बोल दिया है यहां पर टेक्निकल भाषा में, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स. इंडिपेंडेंट सोर्स एक से ज्यादा, और हमें रिस्पॉन्स पता करना है हीरो का. बोले तो रेजिस्टेंस से करंट पता करना है या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है. तो रेजिस्टेंस का रिस्पॉन्स पता करना है. तो कैसे पता करेंगे? हम बोलेंगे बेटा विलन एक के बाद एक आओ, सोर्स एक के बाद एक देखो. पहले आपकी वजह से क्या करंट आएगा वो बताओ, लेफ्ट वाले का करंट आप बताओ, पीछे वाले का करंट आप बताओ. सबका करंट इंडिविजुअली निकाला, उसके बाद उसका एल्जेब्रिक सम किया. एल्जेब्रिक सम क्यों? अब कोई करंट ऊपर से नीचे जा सकता है, कोई करंट नीचे से ऊपर जा सकता है, उसके डायरेक्शन के साथ सम करना है. जैसे ही सम हो गया, जो रिजल्टेंट आया वो हो गया अल्टीमेट इफेक्ट इन द नेटवर्क. बोले तो कंबाइन इफेक्ट पता करना है तो पहले इंडिविजुअल इफेक्ट पता करो, उसके बाद सम कर दो, सुपरपोजिशन थ्योरम लग गया. अब आसान है, अब समझ गया. अब देखो ये समझ के साथ स्टेटमेंट ब्रेक करके देखो. अब इंग्लिश में पढ़ो, अब इंग्लिश में वापस पढ़ो. तो देखो लीनियर नेटवर्क लिखोगे चलेगा, नहीं लिखोगे ये मिस हो गया तो भी चलेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. लेकिन ये आना बहुत जरूरी है कि ये सुपरपोजिशन लगता ही तभी है जब एक से ज्यादा विलन हो, कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, यह आना जरूरी है. उसके बाद अगर हीरो का रिस्पॉन्स चाहिए, बोले तो कोई भी एलिमेंट में रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स. एक के बाद एक आओ, रिस्पॉन्स बताओ, अलजेब्रिक सम ले लूंगा, वो बन जाएगा अलजेब्रिक सम, आंसर ऑफ रिस्पॉन्स. लेकिन जब एक के बाद एक सोर्स आ रहे हैं तो बाकियों का क्या करना है? तो मूवी में क्या होता है, बाकी सब खड़े हैं, आइडल खड़े हैं, आइडल. तो जाओ, करना नहीं है, बस सिर्फ रेडी रहना है, ઉભા રહેવાનું શાંતિથી. એવું જ કંઈક આપણે અહીંયા બીજા સોર્સનું થાય. એક સોર્સ જ્યારે એક્ટિવ હશે ત્યારે બીજા સોર્સને આપણે એના ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સથી રિપ્લેસ કરી દેવાનું. એટલે આઇડલ રહેવાનું ભાઈ, તમારે ઊભું રહેવાનું, તમારે કશું એક્સાઇટેશન નહીં આપવાનું. બસ આ જ છે સુપરપોઝિશન થિયરમ. ચમકા? अब ચમક ગયા? अब જુઓ, મૂવીમાં વિલનને આઇડલ ઊભો રાખવા શું કરવાનું? એને પિક્ચરની ફ્રેમમાં જ નહીં લેવાનો, હે ને? ડાઈવર્સથી આવતો હોય ને માણસ, તો બસ એને જ ફોકસ કરવાનો, એટલે બાકી બધા ऑलरेडी साइड में થઈ જાય. અહીંયા આગળ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना पड़ेगा? तो अगर वोल्टेज सोर्स है बेटा तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो. आइडल वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर दो, आइडल करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर दो. जब एक को कंसीडर कर रहे तो बाकी को ये प्रोसेस करना है. જ્યારે આપણે એક સોર્સને લઈએ તો બાકી બધા ઉપર આ વિધિ કરવી પડે. બરાબર છે? ચાલો સમજીશું એક્ઝામ્પલથી.
લેટ્સ કન્સિડર એન એક્ઝામ્પલ. આપણે ક્વેશ્ચનમાં પણ એક્ઝામ્પલ લખવાનું છે. તો જો 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે એટલે બહુ વધારે મોટું એક્ઝામ્પલ નહીં આપવાનું. સાદું સિમ્પલ જે આપણને ખબર પડે, જે આપણને તરત ધ્યાનમાં આવી જાય. તો જુઓ, ऐसा नेटवर्क जिसमें एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो मैं एक ऐसा नेटवर्क बना रहा हूं, देख लो थोड़ा. ये बन गया. ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है. और आपको पूछा गया है या बोलना है कि यहां से मुझे करंट चाहिए. आई नीड टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 4 यूजिंग सुपरपोजिशन. कैसे करेंगे? तो देखो ये एग्जांपल, ये बनाया, एग्जांपल लिखा. अब लिखो स्टेप 1. स्टेप 1 बोलो, कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स. इंडिविजुअल वोल्टेज एक के बाद एक आना है ना. वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया तो वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे बेटा, तो बाकी के सोर्स जो अवेलेबल है उसके ऊपर प्रोसेस करना पड़ेगा. उसको आइडल, उसको खड़ा रहना है. करंट सोर्स को कैसे बोलेंगे आप खड़े रह जाओ? करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा. करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट, गलत गलत. वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट. करंट सोर्स को ओपन करना पड़ेगा. ऑल राइट, तो चलो अब स्टेप 1 का फिगर बना रहा हूं. देखो स्टेप 1 सुपरपोजिशन थ्योरम लग रहा है, उसमें फिगर कैसा दिखेगा? उसमें फिगर दिखेगा कुछ ऐसा. ये ओपन हो चुका है, ओपन થઈ ગયું છે બાળકો. આ V છે, R1 છે, કથા ચાલી રહી છે, R4 છે. આ નેટવર્કમાં જે રિસ્પોન્સ મળ્યો, I4 ડેશ કહી દો એને. જે પણ કરંટ આવે, કેવી રીતે કરંટ શોધીશું? સિરીઝ પેરેલલ થી, કરંટ ડિવિઝન થી મળી જશે. નોડલ એનાલિસિસ લગાવો, નોડલ લગાવો. મેશ એનાલિસિસ લગાવો તો મેશ એનાલિસિસ લગાવો. સર્કિટ સોલ્વ કરીને કરંટ લાવો R4 થી પાસ થતો. ઓલરાઈટ, સ્ટેપ 1 કન્સિડરિંગ વોલ્ટેજ સોર્સ, નેટવર્ક બનાવો અને લખો कैलकुलेट I4 डैश. वैसे ही स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 कंसीडरिंग करंट सोर्स. करंट सोर्स कंसीडर करवानो छे. करंट सोर्स कंसीडर करिए तो वोल्टेज सोर्स शुं कहेवानुं? बेटा તમે શોર્ટ સર્કિટ થઈ જાઓ. રેઝિસ્ટન્સ સાથે કોઈ છેડા નહીં કરવાના. કરંટ સોર્સ, તમે પિક્ચરમાં આવો. બોલિવૂડનું મૂવી ચાલી રહ્યું છે. R1, R2, R3, R4, મેગ્નિટ્યુડ I, જે પણ કરંટ આવે I4 ડબલ ડેશ કરો. કેલ્ક્યુલેટ I4 ડબલ ડેશ. હવે સ્ટેપ 3 કોઈ ફિગર નહીં આવે અહીંયા. ત્રીજું સ્ટેપ લખો. 3 માર્કનો છે એટલે બહુ વધારે કથા નહીં કરવાની. સ્ટેપ 3 get I4 using equation I4 dash plus I4 double dash. ભાઈ ક્લિયર છે? સુપરપોઝિશન થિયરમ થઈ ગયો 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન. બસ આ ક્વેશ્ચનને કેવી રીતે લખવાનો એ આખી પીડીએફ તમને શેર થશે આપણી એપ ઉપર કોર્સમાં. તો જલ્દીથી જુઓ પીડીએફમાં કેવી રીતે લખવાનું છે. ઓલરાઈટ, ચાલો. ઓકે, ડન. જરૂર નહીં પડી. ક્વેશ્ચન નંબર 2B. ક્વેશ્ચન 2B આની પણ ફીલ લીધી હશે. સર 2 થિયરમ પૂછ્યા છે આ ક્વેશ્ચન 2 માં. પહેલો સુપરપોઝિશન પૂછ્યો છે, બીજો નોર્ટન પૂછ્યો છે. નોર્ટન થિયરમ આવી જાઓ. નોર્ટન થિયરમ શું કહે છે? what it says. સ્ટેટમેન્ટ બહુ સિમ્પલ છે પણ એને એક્સપ્લેન કરવું પડશે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો સ્ટેટમેન્ટ આખું મોટું છે, પરંતુ એને આ રીતે લખશો તો વધારે આસાન થશે. જુઓ, હું તમારા માટે આ સહેલું બનાવી રહ્યો છું. ઓલરાઈટ, ધ્યાન લગાવો. સ્ટેટમેન્ટ, નોર્ટન થિયરમ. નોર્ટન, પહેલા નોર્ટનની ફિગર વગર આવવું જોઈએ યાદ. લખો, જુઓ, વાંચો. એની ટુ ટર્મિનલ ઓફ નેટવર્ક
any two terminal of network can be replaced by an equivalent current source. Two terminal of network can be replaced by equivalent current source and a resistance connected in parallel. And a resistance connected in parallel. આ શું કહેવા માંગે છે કઈ ખબર નથી પડતી. ચલો પાડું આવી જાઓ, એ તો મારું કામ છે. તો બેટા જુઓ, देखो कोई एक नेटवर्क कंसिडर करो, ये बादल जैसा बनाओ या रेक्टेंगल बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है नेटवर्क. इस नेटवर्क से दो टर्मिनल निकालो, उस टर्मिनल के अक्रॉस मान लो आपके रेजिस्टेंस लगे हैं ए और बी, ठीक है, ऑलराइट, और मान लो यहां पे कुछ करंट भी जा रहा है आईएल. नॉर्टन थ्योरम ये बोल रहा है कि आप ये ए और बी को रिप्लेस कर सकते हो नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क से. नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क से. और नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क दिखता कैसे है? नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क कुछ ऐसे दिखता है. ये अभी भी सेम ए और बी है, और यहां पर ये ब्रांच अगर लगाओगे जो सेम ब्रांच आरएल थी, ओके, इसका मैग्नीट्यूड होगा IN, इसका मैग्नीट्यूड होगा RN. तो बेटा ये फिर से समझो, आप स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब कोई एक नेटवर्क है जिसमें ए और बी टर्मिनल के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है, तो आप ये दो टर्मिनल को रिप्लेस कर सकते हो. ये टर्मिनल के बीच में आप ये पूरा काला बादल हटा के आप ग्रीन वाला नेटवर्क लगा सकते हो. इसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क. नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क. नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क लगा सकते हो और इससे रिस्पॉन्स पता कर सकते हो. अगर आईएल ही पता करना है तो आईएल, तो इस नेटवर्क में आईएल पता करना बहुत आसान हो जाएगा. इस नेटवर्क में आईएल पता करना बहुत आसान हो जाएगा. इसमें हमें अंदर क्या है वो पता करने की जरूरत नहीं है फिलहाल नेटवर्क से हिसाब से, ठीक है. इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगा जब इसका एग्जांपल आएगा. ओके चलो, लेकिन अब सवाल ये आता है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे कैसे? ये आईएन क्या होगा और ये आरएन क्या होगा, उसका भी डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा. तो आ जाओ, बता रहा हूं मैं, आ जाओ. तो देखो, कांस्टेंट करंट सोर्स, ये कांस्टेंट करंट सोर्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू शॉर्ट सर्किट. द करंट फ्लोइंग थ्रू शॉर्ट सर्किट, यहां पर शॉर्ट सर्किट कर दो, यहां पर शॉर्ट सर्किट, ये आरएल को हटाओ, हटा सावन की घटा, आरएल को हटाओ और शॉर्ट सर्किट करो. शॉर्ट सर्किट करके जो करंट फ्लो करेगा वही होगा आईएन, ठीक है. एग्जांपल में बताऊंगा कि यहाँ पे एग्जांपल भी करना है हमें, एग्जांपल में मैं बताऊंगा, रुक जाओ. सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, शॉर्ट सर्किट प्लेस्ड अक्रॉस टर्मिनल्स. और ये रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन टर्मिनल. यहां इन दो टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस दिखेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस कैसे? आफ्टर रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. जो सुपरपोजिशन में रिप्लेस करते थे वही रिप्लेसमेंट यहां रेजिस्टेंस के टाइम होगा. वोल्टेज और करंट को सबको बोलो आइडल हो जाओ और फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है. चलो इसका एग्जांपल बताते हैं. इसका एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, पूरी पूरी हवा आ जाओ. तो चलो एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करीशू. ओके, V, R1, R2, R3, RL, मान लो यही RL है और आपके यही दो टर्मिनल है A और B, ठीक है. और यहां से आपको पता करना है IL, ऑलराइट, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम. तो यहां पर अच्छा ऐसे लिख दो क्वेश्चन मार्क. तो यहां पर हम नॉर्टन थ्योरम लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो स्टेप 1, replace RL with
शॉर्ट सर्किट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करो। इसका नेटवर्क में बनाने जा रहा हूं। स्टेप 1 का नेटवर्क देखो नीचे बेटा, ये नेटवर्क बन गया है। यहां पर मैंने एक शॉर्ट सर्किट लगा दिया है ए और बी के बीच में। क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा आई एन मुझे जो मिलेगा वो यहां से मिलेगा, यहां से जो करंट फ्लो करेगा। इस नेटवर्क को सॉल्व करो आप, इस नेटवर्क को सॉल्व करो। वी दे दिया है, R1 दे दिया है, R2 दे दिया है, R3 दे दिया है, सारे वैल्यूज दे दिए हैं। और ओके, अगर नंबर के साथ एग्जांपल लेना है तो नंबर के साथ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आई एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? तो देखो R2 R3 इज पैरेलल इन सीरीज विथ R1, V अपॉन दैट रेजिस्टेंस टोटल करंट दे देगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट मिल जाएगा। बेसिकली आप नोडल लगाओ या मैश लगाओ या सीरीज पैरेलल लगाओ, आपको ए बी से आई एन पता करना है, ए बी से जो करंट फ्लो करेगा आई एन। ओके, सो लिखो कैलकुलेट। अच्छा ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। चलो स्टेप 2, कैलकुलेट आई एन थ्रू ए बी व्हेन शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, स्टेप 1 में जो फिगर बनाया उस यहां से आई एन निकाल लो। अब स्टेप 3, कैलकुलेट आर एन। आर एन के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको बोलो शॉर्ट सर्किट हो जाओ, जो भी करंट सोर्स है उसको बोलो ओपन सर्किट हो जाओ, रेजिस्टेंस साथे चेड़ा नहीं करवाना। ए અને બી વચ્ચે લેવાનું છે, એટલે આમાં પણ પેલી બ્રાન્ચ તો રિમૂવ કરી જ દેવાની। ઓકે, પેલી आरएल वाली ब्रांच तो रिमूव कर ही देवानी। यहां से देखो जो भी रेजिस्टेंस मिलता है उसको बोलो आर एन, जो रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर आर एन क्लियर है, R1 पैरेलल R2 इन सीरीज विथ R3, ये आर एन मिल गया हमें। ये स्टेप 3 आर एन मिल गया। स्टेप 4, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। स्टेप 4, ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम, जो पहले पेज पे बनाया था। एक करंट सोर्स मिलेगा, एक पैरेलल रेजिस्टेंस मिलेगा और ये मिलेगा मुझे ए बी, और यहां पर मैं वापस जो ब्रांच निकाला हुआ था उसको वापस लगा सकता हूं। ओके, ये मुझे वैल्यू मिल चुका है। आर एन कैलकुलेट कर लिया है मैंने, ये आई एन भी कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे पता करना है कि आई एल कितना होगा। तो अप्लाइंग, यहां पर अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। बेटा आईएल कैलकुलेट करना है तो करंट डिवीजन रूल निकालो। तो देखो कैसे लगाओगे यहाँ पे, यहाँ पर सर आई एन आ रहा है, ब्लू से बता देता हूं। चलो सर, यहाँ पर आई एन देखो, करंट सोर्स है तो यहाँ पर आई एन आ रहा है, ये जंक्शन। अब आई एन दो अलग अलग डिवाइड होगा, यहाँ पर आई वन जाएगा, यहाँ पर आई एल जाएगा। ठीक है, करंट सोर्स से जो करंट निकल रहा है वो दो पैरेलल ब्रांच में बटेगा, आई वन और आई एल। जब करंट डिवाइड होता है तो करंट डिवीजन रूल का इक्वेशन लगता है। करंट डिवीजन रूल का इक्वेशन कैसा है बेटा, अगर आपको आईएल चाहिए तो सामने वाला अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आईएन। बोले तो जो करंट डिवाइड हो रहा है वो पूरा का पूरा इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल वाला। क्लियर है? अगर आपको I1 चाहिए होता तो आप यहां पर लिखते RL अपॉन RL प्लस RN। करंट डिवीजन रूल का इक्वेशन लग रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नीचे वाला इक्वेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारा ये इक्वेशन काफी है जो हमें IL दे देगा यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। स्टेप 4 पिक्चर खत्म।
पिक्चर खत्म. ऑल राइट, बस ये लिखना है, बस ये लिखना है आपको. हाँ, यहाँ पर आर एन जब लिखो ना, कैलकुलेट आर एन, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा. कैलकुलेट आर एन बिटवीन A and B by short circuiting voltage and open circuit current source. ये पूरी कथा लिखनी पड़ेगी. क्वेश्चन कैसे लिखना है फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ में जाके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है. ये मैंने एक्सप्लेन किया है. चलो, जरूरत नहीं पड़ी. आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन 2C. क्वेश्चन 2C क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ो. सर थेवेनिन्स थ्योरम. ओहो, मौत आती है. थेवेनिन्स थ्योरम सुन के ही मौत आती है. बेटा कोई गलत, कोई कोई एकदम સિમ્પલ છે. ચલો સિમ્પલ નથી તો હું બનાવીશ. જુઓ, વ્હીટસ્ટોન બ્રિજ ડાયાગ્રામ બતાવ્યો છે. ઓકે, આપ્યો છે. ઓબ્ટેન કરંટ ફ્લોઈંગ થ્રુ 20 ઓહ્મ. 20 ઓહ્મ થી કરંટ ફ્લો કેટલો થશે એ જોવાનું છે. જો વ્હીટસ્ટોન બ્રિજ બેલેન્સ હોય તો કરંટ કશો ફ્લો નહીં થાય. 12માં પડી ગયા, આપણે ભણી લીધું છે. પણ શું વ્હીટસ્ટોન બ્રિજ બેલેન્સ છે? કેવી રીતે ચેક કરવાનું? અપોઝિટ આર્મ મલ્ટિપ્લિકેશન બરાબર છે કે નહીં. જુઓ, 100 ગુણ્યા 4 400 અને 50 ગુણ્યા 10 500. આ 400 છે, આ 500 છે. 400 ને 500 છે એટલે કરંટ તો ડેફિનેટલી ફ્લો થશે, ઝીરો નહીં હોય, બેલેન્સ નથી, કરંટ ફ્લો થશે. એ કરંટ આપણે શોધવાનો છે શેનાથી? થેવેનિન થિયરમથી. ચલો આવી જાઓ. તો જુઓ, આ બે કે નહીં તો ઉપર ગણી લો તો બી ચાલે. આ બંને AB થયા આપણા, અને અહીંયા થેવેનિન લગાવવાનો છે. આ ન્યુમેરિકલ ટાઈપ ક્વેશ્ચન છે. અહીંયા આપણે થેવેનિન લગાવવાનો છે. કેવી રીતે લગાવીશું? તો દેખો, સૌથી પહેલું સ્ટેપ 1, થેવેનિન ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ડ્રો કરી લો. થેવેનિન ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કેવી આવે? વોલ્ટેજ સોર્સ ઇન સિરીઝ વિથ રેઝિસ્ટન્સ. નોર્ટનમાં કરંટ ઇન પેરેલલ વિથ રેઝિસ્ટન્સ, આમાં સિરીઝ વિથ રેઝિસ્ટન્સ. અને આ આવી થેવેનિન નેટવર્ક. આ આવ્યું થેવેનિન્સ નેટવર્ક, જ્યાં આગળ આ છે VTH, આ છે RTH. ઉપર લખો, ચલો, VTH RTH. ઓકે, અને આ ટર્મિનલ જે થયા ને એ બી થયા, જે સર્કિટમાં બતાવ્યા છે. અને અહીંયા પછી જે બ્રાન્ચ આપણે રિમૂવ કરી એ લગાવી શકીએ. અને અહીંયાથી જ કરંટ શોધવાનો છે, I through 20. તો સ્ટેપ 1, પહેલા થેવેનિન સર્કિટ બનાવી લો. બરાબર, બનાવી થેવેનિન સર્કિટ બનાવી તો આમાંથી તમને I20 કેવી રીતે મળશે? આ ઇન્સ્પિરેશન આપશે તમને. તમને અહીંયાથી I20 કેવી રીતે મળશે? જુઓ બેટા, સિમ્પલ સર્કિટ છે. સર, વોલ્ટેજ અપોન ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ, વોલ્ટેજ અપોન ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ. બરાબર, એક તો 20 રેઝિસ્ટન્સ ખબર છે. જુઓ, આ સર્કિટમાંથી ફરીથી બતાવું, આ સર્કિટમાંથી કરંટ કેટલો પાસ થશે એ જોવાનું છે. તો RTH ઇન સિરીઝ વિથ 20. ઓકે, હવે સવાલ એ રહ્યો કે સર VTH અને RTH કેવી રીતે શોધવાના? VTH અને RTH કેવી રીતે શોધવાના? તો ચલો, એની જ મહેનત છે આમાં, એની જ મહેનત છે. ચાલો, હવે સવાલ આવ્યો VTH RTH. પહેલા RTH શોધી કાઢીએ. ચલો આવી જાઓ. સ્ટેપ 1. સ્ટેપ 2 આવશે કેલ્ક્યુલેટ RTH. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ થી કરવાનું. RTH શોધવા માટે શું કરવું પડશે કે આ 20 ઓહ્મ તો રિમૂવ કરવાનો જ છે, આને તો આખો રિમૂવ કરી દેવાનો. ઓકે, આને તો આખો આમ ગાયબ જ કરી દેવાનો, A અને B ઓપન જ કરી દેવાના. તો જો હું સર્કિટ બનાવું છું પાછળ, બીજા રેઝિસ્ટન્સ સાથે ચેડા નહીં કરવાના, રેઝિસ્ટન્સ સાથે કશા જ ચેડા નહીં કરવાના. વોલ્ટેજ સોર્સ હોય તો એને શોર્ટ સર્કિટ કરવાનો, કરંટ સોર્સ હોય તો એને ઓપન સર્કિટ કરવાનો. અહીંયા વોલ્ટેજ સોર્સ છે, શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું છે. આ વોલ્ટેજ સોર્સ શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું છે. રેઝિસ્ટન્સ આપ્યા છે, આ 50 છે, આ 10 છે, આ 100 છે અને આ 4 છે. બેટા હવે આપણે શોધવાનું છે A અને B વચ્ચે કેટલો રેઝિસ્ટન્સ છે. A અને B વચ્ચે કેટલો રેઝિસ્ટન્સ છે. કેવી રીતે શોધીશું? તો આને નેટવર્કને રીડ્રો કરીશું. રીડ્રો નેટવર્કને રીડ્રો કરો. રીડ્રો કરીશું તો કેવી રીતે કરીશું? તો જુઓ, A અને B વચ્ચે આપણે રેઝિસ્ટન્સ જોઈએ છે.
ઓકે, અને આ એક બીજો નોડ છે, એને નંબર 1 આપી દઈએ આપણે. આ તો એ જ થયો ઉપર કનેક્ટેડ છે એટલે આ તો એ જ થયો, આ પણ બી જ થયો. બરાબર, એટલે ત્રણ 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 નોડ આવી, અહીંયા વચ્ચે એક 1 બનાવી લો આપણે. હવે શું કરો, આ બધા રેઝિસ્ટન્સને પ્લોટ કરી લો. તો જુઓ એ અને 1 વચ્ચે કેટલો છે 100 ઓમ. ए અને 1 वच्चे 100 ओम लगा दो भाई, 100 ओम लगा दो यहाँ पे ए और 1 के बीच में. ए और 1 के बीच में 10 भी है, ए और 1 के बीच में 10 भी है, तो कोई नहीं पैरेलल लगा दो, दोनों पैरेलल में हो गए. ए और 1 के अक्रॉस दो दो रेजिस्टेंस है, बी और 1 के बीच में 4 है और 50 है, ये भी पैरेलल में हो जाएंगे. रीड्रॉ कर रहे हैं हम, रीड्रॉ कर रहे हैं भाई. चमका देखो, તો દેખાય છે અહીંથી બી અને 1 વચ્ચે 4 છે અને બી અને 1 વચ્ચે 50 છે. તો હવે આપણને ए અને बी નો રેઝિસ્ટન્સ મળી જશે અહીંયાથી. हाँ सर, अब सिंपल થઈ ગયું. कैसे मिल जाएगा बताओ तो जरा. तो मान लो इसको आप वापस इक्विवेलेंट कर रहे हो R1 R2, तो RAB एंड दैट इज RTH, यही RTH बोला जाता है. ये बोल सकते हैं हम R1 प्लस R2. ऊपर देख लो, ये A और B है, और R1 R2 की वैल्यू क्या मिलेगी सर. R1 है 100 पैरेलल 10, R2 है 50 पैरेलल 4. पैरेलल कॉम्बिनेशन गुणाकार भाग्या सरवाड़ो, गुणाकार भाग्या सरवाड़ो. सो 1000 डिवाइड बाय 110, 200 ભાગ્યા 54. બે ઉડાડવો હોય તો ઉડાવી શકાય, 200 ભાગ્યા 54. ઓકે, ચલો એક આટલું જ રાખવાનું. હજુ એને એલસીએમ કરી શકીએ આપણે. એલસીએમ કરશો તો 3900 ડિવાઈડ બાય 308 ઓમ. હજુ રેશનલ નંબરમાં નહીં જવાનું, આટલું જ રાખો, વાંધો નહીં. એલસીએમ લઈને જે ફાઇનલ મળે એને રાખો એકવાર. બરાબર છે, પોઈન્ટમાં લખવાની જરૂર નથી હમણાં. ચલો પછી જોઈશું. આરટીએચ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો, સો આરટીએચ મળી ગયો. હવે બસ એક જ સ્ટેપ રહ્યો સર, વીટીએચ. હવે વીટીએચ જ શોધવાનું છે, પછી તો આપણે સીધું આ બોક્સ વાળું ઇક્વેશન લગાવીશું, આન્સર મળી જશે. હવે વીટીએચ સ્ટેપ 3, ઓરિજિનલ સર્કિટ વીટીએચ કેલ્ક્યુલેટ વીટીએચ. વીટીએચ માટે ફરીથી સર્કિટ બનાવું છું. એક્ઝામમાં આ બધી સર્કિટ નહીં બનાવો તો ચાલશે, તમારી પાસે સમય પેપર છે એટલે પેપરમાં નહીં બનાવો તો ચાલશે આ બધી સર્કિટ. પણ હા, ક્લેરિટી બધી આપવી પડશે કે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી રહ્યા છો. ઓકે, આ વેલ્યુ કેટલી છે 10 ઓમ, 10 વોલ્ટ છે, 10 છે ને, ચેક કરી લો. 10 વોલ્ટ 100 ઓમ 4 ઓમ 10 ઓમ 50 ઓમ. અને આપણે એ અને બી વચ્ચેના વોલ્ટેજ જોઈએ છે. VAB ઇઝ VTH, VAB ઇઝ VTH. હવે VAB જોઈતા હોય સો હવે જો આ લૂપમાં હું જો KVL લગાવું, આ લૂપમાં KVL લગાવું તો VAB મળી જાય મને. VAB જો હું હાઇલાઇટ કરું છું, આ લૂપમાં હું KVL લગાવવા જઈ રહ્યો છું. આ લૂપમાં આ ત્રિકોણમાં KVL લગાવવા જઈ રહ્યો છું. ओके, चलो ध्यान लगाओ. तो बेटा KVL लगाना है VAB. मान लो अज्यूम करो इससे पहले, तो KVL लगाने से पहले क्योंकि वोल्टेज चाहिए होंगे, KVL के लिए क्या चाहिए होंगे, KVL के लिए वोल्टेज चाहिए होंगे बेटा. वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो करंट चाहिए होगा. तो मान लो ये करंट है, अगर ये करंट है तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया. करंट हमेशा प्लस में ऐड होता है, एंटर होता है, रेजिस्टेंस में प्लस में ऐड होता है, निकलता है तो माइनस देके जाता है. अब मैं लूप में वोल्टेज लगा रहा हूं, KVL लगा रहा हूं, तो VAB VA माइनस VB, VA माइनस VB, इस डायरेक्शन में मैं घूमने जा रहा हूं, टहलने निकला हूं. VA माइनस VB एंटरिंग -50 I2, या लिख लो इसको माइनस V अक्रॉस 50 ओम प्लस V across 100 ohm, and that is equals to 0.
क्यों प्लस आया? क्योंकि मैं प्लस में एंटर किया। और अब ये V50 और V100 को आप रेजिस्टेंस और करंट के फॉर्म में लिख सकते हो। 50I2 100I1। Therefore VAB equals to VTH क्या मिल गया? वो मिल गया 50I2 minus 100I1। अब I2 और I1 पता करना पड़ेगा। ये नेटवर्क में I2 और I1 पता करना पड़ेगा बेटा। ये नेटवर्क में I2 और I1 जो मैंने बताया यहाँ पे, ये I2 और I1 कैसे निकालेंगे? तो देखो ये तो ओपन सर्किट है, ये तो ओपन सर्किट है, तो करंट जो I2 I1 है वो कैसे फ्लो करेगा? देखो मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं सामने, सिर्फ रीड्रॉ कर रहा हूं। ये लटकता हुआ A है, ये ठहरा हुआ B है, ये 10 वोल्ट है। ये वही सर्किट है, कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ वायर्स को एडजस्ट कर लिया है बस। मुझे चाहिए क्या? ये I1 बोला था मैंने, ये I2 बोला था, I1 और I2 चाहिए। अगर ये I है तो बेटा फिर से यहाँ करंट डिवीजन लग सकता है, करंट डिवीजन, लेकिन उसके लिए I ढूंढना पड़ेगा, फिर I1 I2 के बीच में करंट डिवीजन। I कैसे ढूंढेंगे? ये I कैसे ढूंढेंगे? ये I ढूंढने के लिए पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो देखो ये 100 प्लस 10 110 और 54, 110 54 पैरेलल में हो गए, 110 और 54 पैरेलल में हो गए। सो देयरफॉर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर इक्विवेलेंट 10 वोल्ट, आई आर इक्विवेलेंट इज 110 पैरेलल 54 एंड आई इज V अपॉन आई। V कितना है? 10 वोल्ट। आई कितना? V अपॉन आर, सॉरी, आर इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 110 गुणा 54 डिवाइड बाय 164। सिंप्लीफाई करो, 1640 अपॉन 110 गुणा 54, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये, नहीं तो ऐसे ही रखो एक बार, 110 गुणा 54, ये आई आया, ये टोटल आई आया, पीछे सर्किट में तो ये वाला आई आया, ये वाला आई। अब करंट डिवीजन लगाना है, अब करंट डिवीजन लगाना है, I1 और I2 निकालना है, तो करंट डिवीजन यूजिंग करंट डिवीजन, यूजिंग करंट डिवीजन I1 मिल जाएगा, ये वाला I1 मिल जाएगा बेटा। अगर I1 निकालना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस चाहिए टोटल 54 अपॉन टोटल 110 प्लस 54 इंटू 110 प्लस 54 164 इंटू टोटल करंट इंटू आई। तो ये देख लो, ये 164 इंटू 110 इंटू 54, देखो सब बहुत सारा कैंसिल हो जाएगा। 164, ये 10 यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 54 कैंसिल कर सकते हो। I1 पड़ेगा 1/11 और I2 उसी तरह से इक्वेशन लिख रहा हूं, 110 बटा 110 प्लस 54 164 110 गुणा, तो देखो 110 सीधा यहाँ कैंसिल होगा, 164 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 बटा 54 10/54। ये I1 I2 आया, ये इस बॉक्स वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, VTH मिल जाएगा। बॉक्स वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं देखो यहाँ लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलने वाला हूं। Substituting in equation number 2,
Substituting in equation number 2, VTH VAB, VTH VAB क्या मिल जाएगा, 50 इंटू I2, I2 आया है 10/54 माइनस 100 इंटू I1, 1/11। जो भी आ रहा है, ये जो भी आ रहा है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे एलसीएम लेके, ये आएगा 100/54 इंटू 11। मैं ऐसे ही रखता हूं, सिंपल हो जाता है, कुछ कैंसिल होने ही वाला है। अब इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, कहा गया इक्वेशन नंबर 1 फाइनल, तो I20 आंसर मिल जाएगा, I20 VTH अपॉन RTH प्लस 20, VTH अपॉन RTH, RTH कितना निकला था, कुछ तो 3900 308 प्लस 20, सिंप्लीफाई करो, ये मिलेगा कुछ 5 मिली एम्पियर के अक्रॉस, सिमिलर ये नियर टू 5 मिली एम्पियर आएगा। कैलकुलेटर यूज कर लो, एक ही बार कैलकुलेटर यूज करो, देखा बार बार कैलकुलेटर यूज करोगे दिक्कत हो जाएगी, एक ही बार कैलकुलेटर यूज करो, फाइनल आंसर के टाइम नियरली 5 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन बन गया। चलो 2C और भी है इसमें, 2C और बेटा ये डेरिवेशन टाइप है, 2C और डेरिवेशन टाइप है, जल्दी से देखो फटाफट। यहां पर जो इक्वेशन डिराइव करना है ना, जो इक्वेशन डिराइव करना है वो इक्वेशन भी दे दिया है, वो इक्वेशन भी दे दिया है। बेसिकली ये डीसी सर्किट ऑफ आरसी चार्जिंग पूछा है, डीसी सर्किट ऑफ चार्जिंग पूछा है यहाँ पे, वी आर सी, इसको वीसी बोल लो, और करंट जो है उसको आईसी बोल लो, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो जो करंट कैपेसिटर से जाएगा वही आर से जाएगा, तो उसको मैं आईसी बोल देता हूं। ओके, अब हमें इक्वेशन डिराइव करना है चार्जिंग करंट चार्जिंग वोल्टेज का, तो उसके लिए केवीएल लिखो, राइटिंग केवीएल, केवीएल लिखोगे तो V इज इक्वल्स टू V across R plus V across C, V across R plus V across C, V across R लिख सकते हो आप करंट इंटू रेजिस्टेंस, ऑल्सो VC लिख सकते हो आप IC इंटू VC लिख सकते हो आप ये तो VC तो हमें चाहिए ना, VC को भी रिप्लेस करेंगे, IC को रिप्लेस करो, IC लिख सकते हो आप C dVC बाई dt। देखो बेटा चाहिए डिराइव करना है VC, तो IC को रिमूव करो इस इक्वेशन से, पूरा VC के फॉर्म में आ सकता है, तो IC लिख सकते हो C dVC बाई dt, सब्स्टिट्यूटिंग अबोव V आ जाएगा R C dVC बाई dt प्लस VC, ये पड़ा इक्वेशन। IC की जगह C dVC बाई dt रख दिया हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। देखो VC एक तरफ, बाकी सब कुछ सामने, वही सॉल्व करना है इक्वेशन। यहाँ पर dVC बाई dt डिफरेंशियल टर्म आ रहा है, तो मैथमेटिक्स में जो पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, dVC बाई dt पता करना है, सिंपल बेसिक मेथड से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल बेसिक मेथड, डिवाइड कर लो सामने सामने, तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, V माइनस VC इज इक्वल्स टू RC dVC बाई dt, ये स्टेप क्लियर है। अब मैं टाइम वाले टर्म एक तरफ लेके आ रहा हूं, बेटा RC टाइम कांस्टेंट होता है, और V जिसमें VC है वो एक तरफ लेके आता हूं, dVC। देखो
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके। ये आने से आसानी क्या हो जाती है, अब डायरेक्ट इंटीग्रल ले सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन नहीं तो पहले मल्टीप्लाई करो -1 से, क्योंकि वो एक माइनस वाला हिसाब किताब रहेगा ना, माइनस बीसी, तो पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विथ -1, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, सो अब बन गया -1/RC/dt माइनस इंटीग्रेशन 1/V माइनस VC dVC। इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो ये राइट हैंड साइड जो है उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln v माइनस VC, क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर RC कांस्टेंट है, -TRC प्लस K इंटीग्रल कांस्टेंट, वेयर K इज इंटीग्रल कांस्टेंट। हम और ये इनिशियल कंडीशन से पता कर सकते हैं। वी नो दैट एट t इक्वल टू 0 VC इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट करो इसको ऊपर, VC 0 रखा, T 0 रखा, K मिल जाएगा। तो बेटा K की वैल्यू क्या मिली, ln V। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, therefore ln V minus VC is minus T upon RC plus ln V। देखो K की जगह ln V रख रहे हैं हम। इन फ्रॉम इक्वेशन 1 साथ साथ में लिख रहे हो ना, तभी समझ आएगा ये। V माइनस VC माइनस ln V, अब log a माइनस log b है, log a माइनस log b, बेटा log a माइनस log b इज log a by b, log a by b बहुत बार कर चुके होंगे आप। therefore एक्सपोनेंशियल अगर ले लेंगे तो v माइनस VC अपॉन v इज एक्सपोनेंशियल माइनस t बाय RC। लॉग को रिमूव करना है तो e पावर ले लिया, v को डिवाइड कर लो, यहीं पे v को डिवाइड कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस VC बाय v e पावर माइनस t बाय RC। VC बाय v ने करता करो बेटा, VC बाय v ने करता करो, यहां से मैं ऊपर जाता हूं, चलो जगह है ना, जो आइए थे कंटिन्यूएशन। ओके, तो जो v ने डिवाइड करी 1 माइनस VC बाय v e पावर t बाय RC। VC बाय v ने करता करवा हो, एक तरफ लेके आओ तो ये बन जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस t बाय RC। इसको सामने ले जाओ, इसको सामने ले जाओ, दोनों को एक्सचेंज कर लो, बन जाएगा therefore VC can be written as V into 1 minus RC and that's your desired equation। ठीक है, इसमें आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है, इसमें आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। बेटा VC का ग्राफ इस तरह से कुछ पड़ता है, 1 माइनस ई पावर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से पड़ता है, ये फाइनल वैल्यू है, ये होगा V, VC वर्सेस T, ये इस चीज का ग्राफ है, ये इस चीज का ग्राफ है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहां तक कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन 2। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे क्वेश्चन 3 के साथ। अगर क्वेश्चन 1 नहीं देखा है तो आप वो भी रिफर कीजिए। मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में डाउट पूछिए, मजा आ रहा है तो कमेंट भी लिखिए, मजा आएगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियोस बनाने के लिए। चलो, तो इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।